अब यही पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पत्र लिखा, कांग्रेस के थे, इन्होंने जयराम रमेश को पत्र लिखा, पत्र पढ़िए। डियर जयराम रमेश जी, सब्जेक्ट द ड्राफ्ट नेशनल लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011. I would like to place on record my appreciation to you and Ministry of Rural Development and Land Reforms for undertaking the much needed exercise of improving the process of land acquisition and rehabilitation for the benefit of the farmers and for placing the draft in a public domain. ये पृथ्वीराज चौहान का मैं पढ़ रहा हूँ पत्र। सोनिया जी, आपके मुख्यमंत्री ने क्या लिखा आपने कभी पढ़ा नहीं? उन्होंने क्या लिखा? माई गवर्नमेंट हैज गॉन थ्रू द प्रोविजन ऑफ द ड्राफ्ट नेशनल लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2011. On closer examination, we find that the provision of the new act will increase land and rehabilitation cost up to 6 times for public amenities like water supply, health facilities, sewerage and infrastructure, roads, irrigation and power project. As the act is applicable retrospective within 1 year of its enactment, even the ongoing public project where capital land acquisition has already been done will be adversely affected as cost will go beyond budget amount. ये कौन लिख रहा है? ये पृथ्वीराज चौहान लिख रहे हैं इनको। Some examples are enclosed. We request that the major ongoing irrigation, drinking water and power projects will become non-viable as the cost of land will exceed the rate of economic return. By making acquisition process highly centralized and litigious, and increased cost may result in effectively freezing the current land use acquisition to change the current use form, agriculture to public infrastructure and industries would have net positive return over and above cost of land and rehabilitation. I would like to request that the proposed bill be placed before a committee of chief ministers so that consensus can be evolved. Further, I would request you to consider our suggestion which are attached here with this may improve of the bill. These suggestions have primarily focused on, ये पृथ्वीराज चौहान लिख रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, removal of 80% consent when government acquires land for industrial and urbanization purposes, decentralizing authority for deciding public purpose for government owned acquisition, providing the landowner a choice between 3 times market value plus proposed rehabilitation or 6 times market value without rehabilitation package, and bearing litigation on the value of land if above conditions are satisfied. Yours sincerely, पृथ्वीराज चौहान। एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मेरे पास लिखा जो का ही है, हुड्डा ने क्या लिखा, सब प्रदेश के मैंने एक मंत्रियों की मीटिंग बुला, मैं ग्रामीण विकास का मंत्री था और मैंने देश भर के सभी राज्यों के रेवेन्यू मिनिस्टर को बुलाया, ये मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर 27 जून 2014 विज्ञान भवन में हुई है। ये पत्रकार बंधु मेरे से रिकॉर्ड लेकर जाए। इसमें छत्तीसगढ़, केरला ने क्या कहा? सबने इस एक्ट का विरोध किया है। कम्युनिस्ट सरकारों ने विरोध किया है, कांग्रेस सरकारों ने विरोध किया है और सबने ग्रामीण विकास मंत्री करके मेरे को कहा है कि इसको सुधारो। और इन्हीं पार्टी के सांसद राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए पार्लियामेंट में नाटक कर रहे हैं और मार्च का नाटक कर रहे हैं। एक हिंदी पिक्चर में एक गाना था जो मैंने कहा था कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये दुप्पल राजनीति है। अब किसानों के लिए प्रेम आ रहा है, एक समय एक बात कह रहे थे अब दूसरी बात कह रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश के किसानों के माल को सही उपज को सही भाव चाहिए, किसान के खेत को पानी चाहिए, खाद की कीमतें कम होनी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए, किसान ने पेट्रोल डीजल गैस तैयार करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में
हम बिजली तैयार करते हैं, पेट्रोल तैयार करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, किसान अपने तैयार फ्यूल तैयार करता है। क्या इस देश में किसानों की हालत में सुधार नहीं होना चाहिए? क्या गांव में हमारे नए उद्योग नहीं होने चाहिए? क्या गांव में अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए? क्या गांव में अच्छे अस्पताल नहीं होने चाहिए? क्या गांव में सीमेंट कंक्रीट के रोड नहीं बनने चाहिए? क्या गांव में ड्रेनेज लाइन नहीं डालनी चाहिए? क्या गांव में ट्रांसफार्मर लगाकर 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए? क्या हमारे लोग अंधेरे में रहे? गांव गरीब मजदूर किसान के विकास के लिए हम कृतसंकल्प हैं। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं। तुमने देखा हिंदुस्तान? तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं।